Hey guys, welcome you all to the episode 2nd of this Make.com Mastery series, and in this episode we will discuss about data types and data structures like strings, numbers, boolean, binary data, arrays, JSON, bundles, collection and nested objects. मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में समझ सकें, क्योंकि अगर आप डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ गए तो आपको डीबगिंग करने में बहुत ही हेल्प होगी. Why understanding data structures and data types is most important. अगर आप डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप अपनी जर्नी का एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं. Before starting the video, I want to say sorry to you all for not uploading the videos for so long. Now I will upload all the upcoming videos as regularly as I can. So with that being said, let's start the video. Now, what is string? A string is just a piece of text. It can include letters, numbers, symbols or spaces. For example, here in domain section, newagedigital.ph, it is the domain of a company. String must always be represented inside double quotation marks, like here. Here domain is also a string, so it is also inside double quotation marks, then colon. Then we represent a string that is newagedigital.ps. So this string must also represented inside double quotation marks, like this. Here root domain is also a string, so that's why it is inside double quotation marks. Attribute type is also a string, newagedigital.pht. It's also a string. Domain is also a string, so that's why all the strings must be written inside double quotation marks. For example, a person's name like John Smith. Email address एक string है, that's why we have put it inside double quotation marks. For example, john@example.com. A city name like New York. New York has written inside double quotation marks. A message, thank you for your order. A product name. Now, why we use string? हम string का use data या text को pass करने के लिए या store करने के लिए use करते हैं. Now, what is number? A number is exactly what you think it is. Any value you can count or measure, like any number, like age हो गई 29, total price, order quantity 3, temperature 25 degree Celsius, ratings 4.5. These all are numbers. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं उनको हमने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं लिखा है. जेसन का एक रूल होता है कि जब भी आप कोई नंबर्स के साथ डील करते हैं तो उसमें डबल कोटेशन मार्क्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये रूल आपको याद रखना है. नाउ व्हाट इज बूलियन? A boolean has only two possible values, true or false, yes or no. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बूलियन को भी हमने डबल कोटेशन मार्क्स में कोट नहीं करा है. जेसन का ये एक और रूल होता है जहाँ पे when you are dealing with boolean you don't require double quotation marks. अब बूलियन यूज किस लिए होता है? बूलियन मेनली जब आप फिल्टर्स सेट करते हैं उस केस में बूलियन का हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ पेड इज इक्वल्स टू ट्रू देन सेंड द मेल. अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज़ फिल्टर, हाउ टू प्रैक्टिकली यूज बूलियन. आई विल टीच यू एवरी फकिंग थिंग स्टेप बाय स्टेप. बस अभी के लिए ये जान लो कि बूलियन की सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, येस और नो, या हम बोल सकते हैं ट्रू या फॉल्स. Now, what is binary data? Binary data is a non-text data like images, videos, audios, PDF, etc. Basically, files that aren't plain text. बाइनरी डेटा का हम यूज़ किस लिए करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई भी अपनी वीडियो या PNG फाइल अपने G ड्राइव में भेजनी है वाया ऑटोमेशन, आई यूज़ बाइनरी डाटा. You use binary data when uploading, downloading, sending or storing files. Now we will discuss one of the most important thing in this data types and data structures, which is array. Now what is array? Array is literally a set of things that is kind of packed in one kind of set. Now this definition is technical one. Now I will give you an easy definition. An array is just a fancy word of saying a list. For example, आप एक ग्रोसरी स्टोर जाते हो और आपके पास एक लिस्ट होती है आइटम्स को परचेज करने की. ऐसे ही डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिस्ट करने का तरीका होता है, उसे हम अरे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेल आईडी मैंने लिखी है a@gmail.com, सेकेंड b@gmail.com एंड थर्ड c@gmail.com.
अब ये कुछ इस स्ट्रक्चर में अलाइन होता है। स्टार्टिंग में व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एन अरे यू हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं। a@gmail.com हम बात कर चुके हैं, ये एक स्ट्रिंग है इसलिए ये डबल कोटेशन मार्क्स के इनसाइड लिखी जाएगी। उसके बाद कॉमा, देन सेकंड b@gmail.com, ये भी एक स्ट्रिंग है इसलिए हम इसको डबल कोटेशन मार्क्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। देन कॉमा, c@gmail.com भी एक स्ट्रिंग है तो इसलिए हम इसको भी डबल कोटेशन मार्क्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। बट अब हम आखिरी में कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि एक रूल होता है, जब भी आप जेसन या अरे को एंड करने वाले होते हैं तो जो एंडिंग पार्ट होता है उसमें आप कभी कॉमा नहीं यूज करते। नाउ हियर आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम्स। ये सारे अरेज हैं इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ चालू करेंगे। टी शर्ट इज जस्ट अ स्ट्रिंग, then that's why it is inside double quotation marks, then comma, jeans inside double quotation marks, comma, cap inside double quotation marks, then we will close our square bracket. A list of email addresses, I've shown an example of this. A list of prices, हम ये जानते हैं कि जब भी हम नंबर से डील करते हैं हम डबल कोटेशन मार्क्स का यूज नहीं करते क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट का रूल है। That's why we will start with square brackets, we will add number, comma, number, and then we'll close this square bracket. A list of weekdays, we will start with opening square bracket. Monday is a string, that's why it is represented inside double quotation marks, comma, Tuesday inside double quotation marks, comma, Wednesday inside double quotation marks. Then we will close the square bracket. A list of tasks, same example. Basic analogy to understand array is this. Think of a spreadsheet with a single column. Here is a@gmail.com, b@gmail.com and c@gmail.com. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ग्रोसरी स्टोर का, आपके पास एक लिस्ट होती है उसमें सारे आइटम्स लिखे होते हैं, क्या परचेज करना होता है और ये इसी ऑर्डर में लिखे रहते हैं। सबसे पहले टॉप से हम चालू करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद और नीचे आते हैं। सेम इसमें भी होता है, जैसे a@gmail.com, b@gmail.com and c@gmail.com. Now we will discuss the most crucial and important topic, which is JSON. Now what is JSON? JSON stands for JavaScript Object Notation. Now JSON होता क्या है? JSON बस एक फॉर्मेट होता है डाटा को स्टोर करने का या रिप्रेजेंट करने का या ट्रांसफर करने का। यूज टू सेंड एंड रिट्रीव डाटा इन 99% ऑफ मॉडर्न APIs. नाउ JSON इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल की एंड वैल्यू पेयर्स। अब की और वैल्यू पेयर्स होते क्या हैं? एग्जाम्पल, हम यहाँ पे आते हैं। JSON को डिनोट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ये एक JSON है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन number is a string, that's why it is represented inside double quotation marks, then colon. 301 is just a number and we know that if we are dealing with number we don't use double quotation marks, comma. Owner is a string, Rishik Soni is a name, that is a text, that's why it is represented inside double quotation marks. Payment date is a string. Now you may wonder that Rishik, this is a date and you have mentioned that if we are dealing with number we don't use double quotation marks, and you are right. जब भी numbers की बात होती है हम double quotation marks का यूज नहीं करते, but JSON कभी भी dates के साथ डील नहीं करता। भले वो नंबर हैं बट उनमें स्लैशेस और ये सब आ जाते हैं तो वो एक कांस्टेंट नंबर नहीं रह जाता, इसलिए हम डेट्स को हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोर इज अ टेक्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रिंग एंड इट इज इनसाइड डबल कोटेशन मार्क्स। कोलन 3 इज अ नंबर। अब मैं बताता हूँ की और वैल्यूज पेयर्स होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, ये एक नंबर लिखा है, नंबर के आगे 301 है तो की हमारी हुई नंबर और उसकी वैल्यू हुई 301। यही बस की और वैल्यू पेयर्स होते हैं। की सिंपल भाषा में आप समझिए कि सवाल है कि नंबर एक सवाल हुआ, उसका जवाब हुआ 301, सो दैट्स व्हाई हियर नंबर इज आवर की एंड 301 इज आवर वैल्यू। हियर ओनर इज आवर की, ऋषिक सोनी इज वैल्यू। पेमेंट डेट इज की and this date is the value. Floor is a key, 3 its value. Now after completing this we will close our curly bracket.
So basically this is our JSON. Very easy, right? Now here is the basic analogy to remember what is JSON. If you want to remember, then you can see this example. Number column is this, owner's name column is this, payment date column is this, and floor column is this. हमने अरे में देखा था कि कॉलम एक होती है और उस एक कॉलम में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि ये हम देख चुके हैं। ऐसे ही जब जेसन की बात करें तो इसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और मल्टीपल कॉलम्स में वो डाटा स्टोर होता है। समझने के लिए, इन मेक वी विल रिप्रेजेंट जेसन एज बंडल और ऑब्जेक्ट। सो ये एक सिंगल जेसन है तो हम सिंगल जेसन को बंडल भी बोलते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, जिसको हम कलेक्शन भी बोलते हैं। अभी आप ये नाम भूल जाओ कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, टेंशन मत लेना, बहुत ही ईजी है। ऑब्जेक्ट हम देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, हम जेसन को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं या बंडल कहते हैं, बस उसके आगे अरे और लग गया है। सिंपल। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में 3 लोग रहते हैं। पहले फ्लोर पे रहती है रेशल, सेकंड फ्लोर पे रहती है जेसिका, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं ऋषिक सोनी। इसमें समझते हैं हम ये सारी चीज़ें। मैं इसको जूम इन करता हूँ, देखो ये सारी डिटेल्स हैं। अब हम ये जानते हैं ये एक सिंगुलर जेसन है जिसको हम बंडल भी बोलते हैं। तो ऐसे ये एक बंडल हो गया, ये एक बंडल हो गया और ये भी एक बंडल हो गया। ये एग्जाम्पल में 3 बंडल्स हैं। इस मल्टीपल बंडल्स को ही हम कलेक्शन बोलते हैं। वेरी सिंपल। कलेक्शन क्लियर है। अब इस नाम पे आते हैं। नाम में लिखा गया है कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब नाउ ये तो एक कलेक्शंस हैं, अब इसके आगे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स और लगा देंगे स्टार्टिंग और एंडिंग में, तो ये बेसिकली एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया जिसे हम कलेक्शन बोलते हैं। वेरी सिंपल। ये एक और एग्जांपल है कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि स्टार्टिंग, जब भी हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन के साथ डील करते हैं, स्टार्टिंग से ही हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे वी विल ओपन कर्ली ब्रैकेट्स। ईमेल हमें पता है एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के साथ रिप्रेजेंट करी जाती है, वो भी हमें पता है। उसके बाद हम कोलन लगाएंगे। ये एक ईमेल एड्रेस है, हमें ये भी पता है कि एक ईमेल एड्रेस भी एक स्ट्रिंग होता है, तो इसलिए हम इसको भी डबल कोटेशन मार्क के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। देन कॉमा, नेम इज ऑल्सो स्ट्रिंग, एना इज ऑल्सो स्ट्रिंग, कॉमा, कंपनी इज अ स्ट्रिंग, company name is Acme Corp, it's also a string, that's why it is represented inside double quotation marks। और यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे। और हमें ये भी पता है जब भी हम जेसन एंड करते हैं तो जेसन जब भी एंड होने वाला होता है ये उसका आखिरी की एंड वैल्यू पेयर होता है। आखिरी की एंड वैल्यू पेयर के बाद हम कोई भी कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये एक बंडल हो गया, ऐसे ही ये एक और बंडल हो गया। यहाँ पे 2 बंडल हो चुके हैं। हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ ओपन कर ही लिया था, हम वैसे ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये पूरा फॉर्मेट को कलेक्शन कहते हैं। सिंपल। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज जस्ट अ फैंसी वर्ड ऑफ सेइंग अ लिस्ट ऑफ जेसन। ये जैसे यहाँ पे 2 जेसन्स हैं, इसी 2 जेसन की लिस्ट को हम कलेक्शन कहते हैं। Simple. It is just a set of properties. Amazing. Now, basic analogy, think of it like a spreadsheet with multiple columns. Cool. So now, before discussing all the stuffs which we have covered, I want to discuss nested objects. Now, what does this nested object means? In simpler way, it means data inside data. अब इसका मतलब क्या हुआ? It means JSON inside JSON, अरे इनसाइड अरे एंड मैनी मोर। अब मैं इस जेसन लिंट पे 3 एग्जांपल्स ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। फर्स्ट सिंपलर वन, सेकंड मिड लेवल एंड थर्ड एडवांस्ड लेवल। बिफोर क्रिएटिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट आई वांट टू आंसर वन थिंग, दैट व्हाई वी यूज नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, and the answer for this is we use nested object to organize related information together inside one main item, just like folder inside folder on your computer। अब जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम बिल्ड करेंगे वो है कि थिंक ऑफ अ प्रोडक्ट इनसाइड अ शॉप। जस्ट लाइक मैं एक स्टेशनरी पे एक नोटबुक खरीद के ला रहा हूँ और मैंने उस नोटबुक के पीछे उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ी कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है एंड एक्सेट्रा।
अब इस एग्जाम्पल से आपको रियल लाइफ में पता चलेगा कि हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट का यूज़ किस लिए करते हैं। अभी मैं एक बेसिक जेसन फॉर्मेट क्रिएट करूंगा जेसन लिंट पे। सो नाउ वी विल क्रिएट अ जेसन। To create a JSON, we have to start with curly brackets. Then I want product name. Product. And my product is a notebook. Then I will write manufacturer name. Manufacturer name will be, I will write ABC stationery. Yes. And then I will write industry located. It is located in India. And we know that if we are ending JSON, the ending key and value pair doesn't consist a comma mark. So we will not add a comma. Next line we will close curly bracket. This is a simple JSON. इस JSON में हमें ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है और इंडस्ट्री उसकी कहाँ लोकेटेड है। ये एक बहुत ही सिंपल JSON है। बट अब हम यूज़ करेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट को। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूज किस लिए आता है कि दिस सिंपल जेसन बिकम्स मैसी व्हेन द मैन्युफैक्चरर हैज मोर डिटेल्स लाइक फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एंड मैनी मोर. So instead of writing this simple JSON, we use nested JSON. Now I will delete this simpler JSON and write a proper structured one. Now we will make our organized JSON. Our JSON starts with open curly brackets. उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट नेम. We know that product is a string, so that's why we enclose it into double quotation marks. Product. नोटबुक. प्रोडक्ट हो गया. अब हम मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स डालेंगे. मैन्यू डिटेल्स. अब हम मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स डालेंगे. अब अगर हमें मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स प्रॉपर डालनी है कि जैसे उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसके ईमेल क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, तो हम डायरेक्टली बस ऐसे पुट नहीं कर सकते. हमें उसके लिए एक और जेसन क्रिएट करनी पड़ेगी इसके अंदर ही. सो वी विल क्रिएट अ वन मोर जेसन. अब हम डालेंगे कि उस मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है. तो अवर मैन्युफैक्चरर नेम I will say the name will be Rahul. So Rahul is the name of our manufacturer. Then what is the address? I will just type random digits for address. Now what is the phone number of Rahul? Phone. Sorry. I will write random numbers. Now I will write the website of this notebook company.
So this is our website. Now I will write the email address of this notebook company. That will be email dash address. It will be what I write. Notebook. Not. Yeah. Notebook @gmail.com. Cool. So that's our email address. I think in the place of address, I write something else. I will write India. So yeah, this is our structured JSON. अब ये वाला जेसन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है कंपैरिजन टू द प्रीवियस जेसन जिसमें बस एक प्रोडक्ट था, मैन्युफैक्चरर का नेम था और बस मैन्युफैक्चरर का एड्रेस था. हम उस जेसन में इतनी सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते थे. दैट्स वाई वी यूज नेस्टेड ऑब्जेक्ट टू क्रिएट दिस ऑर्गेनाइज्ड जेसन. अब हम इसको वैलिडेट करके देखते हैं. या और जेसन इज़ अ वैलिड. अब इसमें हम जानते हैं कि हम नंबर्स के साथ जब भी डील करते हैं तो हम डबल कोटेशन मार्क्स का यूज़ नहीं करते. और हम ये भी जानते हैं जब जेसन एंड होने वाला होता है तो उसके की और वैल्यू पेयर्स के बाद हम कॉमा का भी यूज़ नहीं करते. दैट्स वाई अवर जेसन इज़ वैलिड. नाउ वी विल जनरेट सेकेंड एग्जाम्पल. सो नाउ आई विल डिस्कस सेकेंड एग्जाम्पल. हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि कैसे जेसन इनसाइड जेसन वर्क करता है जिसको हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं. अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे अरे इनसाइड जेसन. अब हम इस सेकेंड एग्जाम्पल में एक नेस्टेड जेसन जनरेट करेंगे रिगार्डिंग कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर गए. हमने उधर क्या देखा, हमने उधर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच देखी जो कि स्मार्ट वॉच है और एक हमने ईयरबड्स देखे. तो हम उसके ऊपर एक प्रॉपर नेस्टेड जेसन जनरेट करेंगे कि उन प्रोडक्ट्स की आईडी क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है. उस जेसन में हम उन ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी स्पेशलाइजेशंस हैं उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम शो करेंगे. सो नाउ वी विल मेक अ जेसन स्टोर. और स्टोर नेम इज़ गैजेट स्टोर. अब हम इस गैजेट स्टोर पे दो आइटम्स देखने वाले हैं. पहला एक स्मार्ट वॉच और दूसरा ईयरबड्स. नाउ आई विल राइट आइटम्स. अब मैं यहाँ अरे का यूज़ करूँगा. जब ये एग्जाम्पल मैं पूरा बना लूँ तब मैं बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे अरे का यूज़ किस लिए करा है. क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हमने जेसन का यूज़ करा था तो अब आपको लग रहा होगा कि इधर अरे का यूज़ क्यों हो रहा है. वेट अ मिनट. आईडी I will write ID 1. Name of the product will be smartwatch. Now I will add the features. अब यहाँ पे मैं जेसन का यूज़ करूँगा. हमें पता है कि हम जेसन इनसाइड जेसन का यूज़ कब करते हैं. जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि अगर उस मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स हमारे पास ज़्यादा हैं, जैसे उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल्स हमारे पास हैं, तब हम जेसन इनसाइड जेसन का यूज़ करते हैं. दैट्स वाई फीचर्स भी मैं इसमें दो तीन ऐड करूँगा, जैसे कि बैटरी लाइफ, वाटर प्रूफ एंड लाइट वेट. तो इसलिए मुझे इन सारे फीचर्स के बारे में पता है, इसलिए मैं जेसन यूज़ करूँगा.
battery life, I will write 24 hours. Battery life, then waterproof. Waterproof, I will use boolean. boolean वैल्यूज़ हमें पता है, boolean की सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या तो फॉल्स, येस या नो. सो हेयर आई विल राइट ट्रू. ये हमारी घड़ी वाटरप्रूफ है. वाटरप्रूफ, लाइट वेट. हमारी घड़ी लाइट वेट भी है. Now our first JSON is completed. Now I will close brackets. पहला ब्रैकेट ये फीचर्स वाला क्लोज करेंगे हम, क्लोज. दूसरा ब्रैकेट हम ये आइटम्स के बाद से चालू हो रहा है वो क्लोज करेंगे. Now we will make another JSON for our another product which is earbuds. ID, I will write ID2. Name of the product will be earbuds. Now features, फीचर्स इसमें भी हम 2 या 3 लिस्ट करेंगे, जैसे सेम बैटरी लाइफ, वाटरप्रूफ और लाइट वेट. For battery life I will write 48 hours. Battery life is completed. Now waterproof. Waterproof, I will write false here. Lightweight. It is true. So our second product description has completed. Now I will close the brackets. First for this feature one, closed. Then for the starting bracket, closed. This is for this, this is for this. Now this bracket is remaining, which is square bracket. Now our first main bracket, curly bracket. So now this is our nested JSON. Now we will validate our JSON. Yeah, our JSON is valid. Now इस nested object का पहला सवाल कि हमने nesting use क्यों करी. We use nesting to group related information together in a clean and structured way. हमने यहाँ पे सबसे पहले nesting करी items के बाद. अभी मैं बताऊंगा कि मैंने ये array का use क्यों करा है, बट उससे पहले हम nesting clear कर लेते हैं. सबसे पहली nesting हमारी हुई है यहाँ पे items के बाद, क्योंकि हमारे पास उन आइटम्स की दो वैल्यूज थी, एक तो उनकी आईडी और उनका नेम. दैट्स वाई वी यूज नेस्टेड. नाउ दूसरी बार हमने नेस्टिंग यूज करी फीचर्स पे, क्योंकि फीचर्स के लिए हमारे पास 3 लिस्टिंग्स थी. बैटरी लाइफ था हमारे पास, वाटरप्रूफ थी, लाइट वेट. दैट्स वाई वी यूज लिस्टिंग फॉर फीचर्स. सेम इन दिस केस यहाँ पे भी हमने फीचर्स की लिस्टिंग यूज़ करी है, क्योंकि बैटरी लाइफ, वाटरप्रूफ ये सारे हमारे पास उसके की और वैल्यू पेयर्स थे. इस नेस्टिंग को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ. जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे एक प्रोडक्ट बाय करने गए, जैसे कि टीवी बाय करने गए, तो वो बंदा टीवी एक बॉक्स में रैप करके प्रॉपर अच्छे से देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बड़ी सी नेस्टेड जेसन हमारा एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर हमारी टीवी रखी गई है. स्मार्ट वॉच की जगह हम टीवी मान लेते हैं.
एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर टीवी रखी गई है और उसके जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वायर्स, स्टैंड्स, स्क्रूज, वो उस बॉक्स के भी एक छोटे से बॉक्स के अंदर आते हैं। तो ऐसे ही एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर ये टीवी रखाई गई है, फिर उसके भी एक छोटे से बॉक्स में उसके मेन कंपोनेंट्स हैं जैसे वायर्स हो गए, यहाँ वायर्स, स्क्रूज, स्टैंड। सिंपल। तो इस एग्जाम्पल से नेस्टिंग क्लियर हो जाता है, बट अभी भी एक और चीज़ क्लियर नहीं होती जो कि है कि वाई यू यूज अरे हेयर। इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि अरे क्या होता है। हम अरे जानते हैं, अरे इज जस्ट अ फैंसी वर्ड ऑफ सेइंग अ लिस्ट, एंड अनदर डेफिनेशन ऑफ अरे इज an array is a collection of similar things. So in this case we are storing multiple products like smartwatch and earbuds in one place. तो इसी दो आइटम्स के कारण हमने अरे का यूज करा है। और आपको ये एक स्टेटमेंट याद रखना है, you have to use square brackets when you have more than one items or things to store. इधर हमारे पास दो आइटम्स थे स्टोर करने के लिए, एक तो स्मार्ट वॉच, दूसरा ईयरबड्स, इसलिए हमने अरे का यूज करा है। हम इस चीज़ को एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप एक समझिए जो आइटम्स हैं वो एक बड़ी सी बास्केट है, उस बड़ी सी बास्केट में प्रोडक्ट्स रखे गए हैं मल्टीपल। अभी हमने दो कंसिडर करे हैं, बट आप समझिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। उन प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस में उनके फीचर्स के भी बॉक्सेस अलग हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट समझना कितना ज़रूरी है। Now this is our third example of representing nested objects. हम इसको एक बार में पूरा कवर नहीं करेंगे, हम इसको स्मॉलर चंक्स में कवर करेंगे अच्छे से समझने के लिए। जैसे पहले चंक हम ये समझेंगे कि हमने इसमें क्या करा है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि ऑर्डर्स के बाद क्या हुआ है। अब हम सबसे पहले इसको समझते हैं। समझिए कि यूज़र एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर दो बॉक्स लाए करते हैं। सबसे पहला एक तो आईडी एंड सेकेंड प्रोफाइल। ओके, अब उस प्रोफाइल के अंदर भी तीन मल्टीपल बॉक्सेस लाए करते हैं जैसे यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस एंड प्रेफरेंसेस। अब उन प्रेफरेंसेस के अंदर भी हमारे दो और बॉक्सेस लाए करते हैं विच इज़ थीम एंड नोटिफिकेशंस। अब उन नोटिफिकेशंस के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें लाया करती हैं या दो बॉक्स लाया करते हैं which is email and SMS. So it is example of JSON inside JSON. अभी हमने इधर अरे का यूज़ नहीं करा है फर्स्ट सेक्शन में। आपको डाउट आ सकता है कि यहाँ पे तो इतने सारे आइटम्स हैं तो हमने अरे का यूज़ क्यों नहीं करा। अरे का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको एक या एक से ज़्यादा चीज़ स्टोर करनी हो। यहाँ पे जब ये JSON स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यूज़र सिर्फ एक है। यूज़र के प्रेफरेंसेस बहुत सारे, बट यूज़र एक है। अगर यूज़र्स मल्टीपल होते हैं तो हम इधर अरे का यूज़ करते हैं। नाउ इन सेकेंड फेज वी हैव यूज्ड अरे। अब हमने इधर अरे का यूज़ क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ब्लूटूथ स्पीकर, दूसरा पावर बैंक। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड अरे। अब हमने इस अरे के बाद नेस्टिंग यूज़ करी है क्योंकि हमें इस ऑर्डर के बारे में तीन चीज़ें पता हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर आईडी पता है, डेट पता है, और उस ऑर्डर आईडी के अंदर कितने आइटम्स हैं हमें वो भी पता है। इस एग्जांपल को अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा समझिए, एक बड़ी सी बास्केट है जिसको हमने ऑर्डर नाम दे के रखा है, ऑर्डर्स। एक बड़ी सी बास्केट है ऑर्डर्स। ईच ऑर्डर इज अ बॉक्स दैट कंटेन्स ऑर्डर इन्फो एंड अनदर बास्केट आइटम्स विथ प्रोडक्ट बॉक्सेस इनसाइड। इस पूरे एग्जाम्पल की एक बेसिक एनालॉजी ये है कि आप एक यूजर हैं, यू हैव अ प्रोफाइल, प्रेफरेंसेस एंड नोटिफिकेशन सेटिंग्स, देन यू प्लेस ऑर्डर्स एंड ईच ऑर्डर आइटम्स यू बॉट। नाउ हम जेसन लिंट पे तीन एग्जाम्पल समझ चुके हैं। अब हम make.com के अंदर जाते हैं और उधर जेसन के साथ थोड़ा प्ले करते हैं। नाउ दिस इज अवर जेसन प्लेग्राउंड। पहला मॉड्यूल जो है इसका वो है पार्स जेसन। अब आप पार्स जेसन कहाँ से ला सकते हो? जेसन पे आप क्लिक करोगे नीचे टूल्स पे, पार्स जेसन, एंड या आई विल शिफ्ट द ट्रिगर। ये ट्रिगर हमें पता है एक पुलिंग ट्रिगर है। इसके अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। अंदर की जेसन, अब ये जेसन मैंने जब हम कलेक्शन पढ़ रहे थे, जब ये जेसन का मैंने यूज़ करा था एज एन एग्जाम्पल। अब इस जेसन को हम रन करते हैं, रन दिस जेसन। ये हमें आउटपुट देती है
इनपुट बंडल हमारा ये था, एक जेसन विच इज़ ऑल्सो नोन एज कलेक्शन या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि हमारा ये एक बंडल था, हमने डिस्कस कर चुका है, ये हमारा सेकंड बंडल था और ये हमारा थर्ड बंडल था। नाउ वी विल टॉक अबाउट आउटपुट। अब हमें आउटपुट मिला कैसा, क्योंकि हमें मेक पे इस फॉर्मेट में डील नहीं करना होता, अब मेक पे इस फॉर्मेट में डील करते हैं। जैसे मैंने बताया है, ये एक बंडल है, दिस इज बंडल। नाउ इस बंडल 1 के आगे कलेक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। अब हमें ये पता है कि एक पूरा ये कलेक्शन है, उसका ये एक बंडल 1 है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन वही है इस पूरे कलेक्शन का, ये बंडल 1 विच इज दिस। सेम ये हमारा बंडल 2 है पूरे कलेक्शन का, वो ऐसे रिप्रेजेंटेड है। सेम ये हमारा बंडल 3 है इस पूरे कलेक्शन का, तो वो ऐसे लिखा गया है। और हाँ, जितने भी ये रिसोर्सेज है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे अपलोड कर दूंगा इन अ गूगल डॉक्स, सो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ये पूरे प्रेजेंटेशन की पीडीएफ, और ये वर्क फ्लो मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा, तो आप उधर से चेक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ना ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था कि हमने जब रन वंस करा तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। ना अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट रन करेंगे। अब इसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं, पूरा फॉर्मेट सेम है, बस स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बिल्डिंग ऐड कर दी है अरे से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस मॉड्यूल को खोलूँ तो यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग एडिड नहीं थी, यहाँ पे बस अरे के बाद अपने मल्टीपल बंडल्स आ जाते हैं। तो इसमें मैंने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बस अरे के आगे मैंने बिल्डिंग लगा दी है। तो इससे होगा क्या, इससे पहले जो हमारी अरे थी, जो अभी मैं वापस दिखा देता हूँ, ये जो हमारी अरे है वो एक नेमलेस अरे है, क्योंकि यहाँ पे कोई अरे का नेम नहीं है। तो मैंने बिल्डिंग जो ऐड करा है वो एक अरे का नेम हो गया है, जो कि है बिल्डिंग। मैं रन करके आपको शो कर देता हूँ कि कैसी दिखती है। सी, दिस इज अरे एंड द नेम ऑफ अवर अरे इज बिल्डिंग। बाकी सब सेम है, बस मैंने नेम ऐड करने के लिए अरे से पहले बिल्डिंग ऐड करी है। नाउ वी विल हॉप ऑन टू अवर थर्ड मॉड्यूल। अब इसमें क्या है हम देखते हैं। इसमें मैंने बिल्डिंग के बाद उसकी काउंटिंग ऐड कर दी है, जैसे बिल्डिंग 1, उसके बाद मैंने फ्लैट्स ऐड कर दिए हैं कि बिल्डिंग 1 में मल्टीपल फ्लैट्स हैं, उनके रूम नंबर्स और जितने भी फ्लैट ओनर्स की डिटेल्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो इससे होगा क्या अभी देखते हैं। इसको हमने रन वंस करा, बिल्डिंग 1 पहले शो हुआ, फिर उसकी जो अरे है उसका नेम चेंज हो गया, फ्लैट्स हो गया। पहले जो हमारी अरे थी वो बिल्डिंग 1 थी, अब मैंने उसके अंडर में मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अरे है वो फ्लैट्स बने, दैट्स वाई मैंने इस फॉर्मेट का यूज़ करा। बिल्डिंग 1 के बाद मैंने फ्लैट्स लिखा, उसके बाद हमारा अरे चालू हो रहा है, एंड रेस्ट इज सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे मैंने। हम इसमें खोल के देख लेते हैं, ये फ्लैट्स है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब हम फोर्थ मॉड्यूल पे जाते हैं। फोर्थ मॉड्यूल में क्या है, अब इस फोर्थ मॉड्यूल में मैंने मल्टीपल बिल्डिंग्स कंसिडर करी हैं कि मल्टीपल बिल्डिंग्स है, उन मल्टीपल बिल्डिंग्स में मुझे सिर्फ बिल्डिंग 1 का पूरा डाटा चाहिए। वैसे ही मल्टीपल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग 1, जैसे हमने अभी तक जितने एग्जाम्पल समझे कि इस बिल्डिंग्स को आप समझिए एक बड़ा सा बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स, बिल्डिंग 1 उसका छोटा बॉक्स, फ्लैट्स उसका और छोटा बॉक्स उसके अंदर का, और ये सारी डिटेल्स उसके भी अंदर के छोटे ब्लॉक्स, सेम नेस्टेड डाटा। हम इसको रन करते हैं, ये है क्या, our first array name is buildings, then हमें 2 बिल्डिंग्स के डाटा शो हुए, बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2। बिल्डिंग 1 के फ्लैट्स के बारे में हम डाटा जानेंगे क्या है, बिल्डिंग 1 के डाटा हम सारे देख चुके हैं। नाउ दिस इज बिल्डिंग 2 डाटा। इट्स बेसिकली
डेटा इनसाइड डेटा और जेसन इनसाइड जेसन, जो हम कवर कर चुके हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में। सेम हम 5th मॉड्यूल पे देखेंगे। इसमें क्या है, अब मैंने इसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स रख दी हैं। पहले मैंने 2 बिल्डिंग्स रखी थी, इसमें मैंने 10 बिल्डिंग्स का पूरा डेटा मैप करा है। अब इसको रन करके देखते हैं हम। बिल्डिंग्स वो मेन अरे, ये पूरी 10 बिल्डिंग्स का डेटा आ गया है हमारे पास, जिसमें कि ये पहली बिल्डिंग है। बिल्डिंग 1 के कितने फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स पे कितने अपार्टमेंट्स हैं और उन अपार्टमेंट में कौन कौन लोग रहते हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब यहाँ पे हमारे पास आ गई है। ऐसे ही सेकंड पे सारे पे हम चेक कर सकते हैं। नाउ वो लास्ट मॉड्यूल, इसमें मैंने 35 बिल्डिंग्स रखी हैं। इसमें मैंने 2 बिल्डिंग्स रखी थी एडवांस नेस्टेड ऑब्जेक्ट में। क्रेजी नेस्टेड ऑब्जेक्ट में मैंने 10 बिल्डिंग्स का डाटा रखा है और इनसेन नेस्टेड ऑब्जेक्ट में 35 बिल्डिंग्स का पूरा डाटा रखा है। हम इसको रन करके देखते हैं। इसमें मैंने पूरी लोकेलिटी का डाटा फीड कर दिया है। तो एक लोकेलिटी में मैंने कंसिडर करा है कि एक लोकेलिटी में 35 बिल्डिंग्स हैं, उन 35 बिल्डिंग्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर डाटा हमारे पास आ गया है। ये मैंने इनपुट दिया था इस जेसन को, ये पूरा इनपुट है 35 बिल्डिंग्स का पर्सनल डाटा। हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में उनका डाटा आ गया है। यू कैन सी ये पूरी 35 बिल्डिंग्स हैं। सो हियर हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी ख़त्म होता है। हियर अवर वीडियो कम्स टू एन एंड। मैं जितनी भी ये रिसोर्सेज हैं, पीडीएफ और जितनी भी जेसन फाइल्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रॉपर डॉक्स बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप उधर से ये सब चेकआउट कर सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ कि ये सब चीज़ें एक ही बारी में देख के नहीं आती हैं, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। मुझे भी स्टार्टिंग में जेसन्स, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स ये सब समझ में नहीं आते थे। मैंने भी बहुत ट्राई करा, मेक पे मैंने बहुत मॉड्यूल्स बना के प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डाटा को ऐसे ही टेस्ट करा, चैट जीपीटी का यूज़ करा मैंने, तब जाके मैं सारी चीज़ें समझा। तो अगर आपको भी ये अभी तक अच्छे से नहीं समझ में आई हैं, तो आप इस वीडियो को वापस देखिए और चैट जीपीटी और इन सब का हेल्प लीजिए। मैं जितना अच्छे से समझा सकता था मैंने वो समझा दिया है। मैं इसके अगले पार्ट में, विच विल बी अवर पार्ट 2 ऑफ एपिसोड 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा मैपिंग, एडवांस डेटा मैपिंग एंड सम फंक्शंस लाइक मैप, फ्लैटन, और हम 3-4 यूज केसेस देखेंगे make.com के अंदर। एंड इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, just hit a like button and a subscribe button and share this video with your loved ones, cheering you all on even in silence. Goodbye.